آپ لوگ ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ ایک آدمی ہمارے گھر میں موجود ہے جو کہتا ہے کہ وہ سفیر حسین ہے۔ ہمارے گھر؟ ہاں، یہاں ہمارے گھر میں، عبید اللہ ابن زیاد کی بیوی کے باپ کے گھر میں۔ اگر کہیں عبید اللہ کو پتہ چل گیا تو؟ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ شاید جیسا کہ تم سوچ رہی ہو صحیح ہو کہ وہ حسین ابن علی کی جانب سے نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شاید واقعی وہ حسین ابن علی کا سفیر ہو۔ میں کیا کروں؟ اس سے کیسے نجات حاصل کروں؟ بابا اس پیغام کو خواہ وہ کسی طرف سے بھی ہو ایسے لیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ بہریہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم کبھی بھی میدان سیاست کے آدمی نہیں رہے، لہٰذا خود کو اس جھنجھٹ سے دور رکھو۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم انہیں مجبور کیا تھا کہ اپنی بیٹی ابن زیاد کے حوالے کر دوں، وہ جس کے ہاتھ میں گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہاری بیٹی امیر بصرہ کے گھر میں ہے، ابن زیاد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، نہ کہ ہم۔ اس آدمی کا کیا کروں جو ہمارے گھر میں ہے؟ اگر واقعی یہ حسین کا بھیجا ہوا سفیر ہوا تو اسے چلتا کرو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں غلام سے کہہ دیتا ہوں کہ اسے باہر نکال دیں اور بس۔ اور تم بھی اس بابت ابن زیاد سے کچھ مت کہنا، سمجھی تم؟ کچھ نہیں کہوں گی بابا۔ لیکن سنیے، اگر وہ جاسوس ہوا تو ابن زیاد تو ہمیں نہیں چھوڑے گا کہ وہ آدمی ان کے حوالے کیوں نہیں کیا جو شاید حسین کا سفیر ہو۔ ہماری بیٹی اس کے چنگل میں ہے، اور ہم بھی۔ وہ جاسوس ہے، ورنہ جرأت نہیں کرتا کہ اس گھر میں قدم رکھے۔ بالکل، سب جانتے ہیں ابن زیاد آپ کا داماد ہے۔ عجیب دورائے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر جاسوس ہوا تو ابن زیاد کے غضب کا نشانہ بنیں گے، اور اگر سفیر حسین ہوا تو خدا کے قہر و غضب کا۔ میں خدا کے غضب سے زیادہ ڈروں یا پسر زیاد کے غیظ سے؟ قہر خداوندی، فی الحال ان باتوں کو چھوڑو۔ ابھی ہماری بیٹی کو دربار عبید اللہ میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ دل سے ڈر اور خوف نکال دو اور صرف اپنی بیٹی بہریہ کے بارے میں سوچو۔ ہاں، رحم کرو بابا۔ ابن زیاد اتنی آسانی سے مجھ سے دستبردار نہ ہوگا۔ آپ کو خبر کی تاکہ بتا سکوں کہ میں اب بصرہ میں مزید نہیں ٹھہر سکتی، آج رات ہی مکے کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ سنا ہے کہ یزید ابن ثقفی اور اس کے بیٹے بھی نصرت حسین ابن علی کے لیے بصرے سے روانہ ہو گئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ،
جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. سلیمان کی کیا خبر ہے؟ آج اس کی بیوی مل گئی، لیکن ایک پرانے کھنڈر میں اور زخمی. زخمی کیوں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا اس سے پہلے کہ سلیمان اس تک پہنچتا. افسوس. اور سلیمان کا کیا حال ہے؟ پیغام حسین پہنچانے کے لیے منزل کے گھر گیا ہے. بالآخر چلا گیا. پتہ نہیں کیوں منزل کا نام سنتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. کاش وہ وہاں نہ گیا ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ سلیمان کو آپ اپنی پناہ میں لے لیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی. آپ بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں. آپ کے لیے زیادہ دیر بصرہ میں ٹھہرنا مناسب نہیں. میں نے سوچا کہ شاید بصرے کے قبیلوں کے سرداروں میں سے کچھ اور بھی افراد ہوں جو ہمارے ساتھ ہم سفر ہونا چاہیں. کتنا اچھا ہو اگر ایک بڑا قافلہ بصرے سے حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے روانہ ہو، تاکہ یزید اور ابن زیاد کی آنکھوں میں خار بن کے کھٹکے. خدا آپ کا بھلا کرے. اس تمام عرصے میں آپ ہمیشہ میری پشت پناہی کرتے رہے ہیں. آپ بھی اسی طرح بصرے کے تمام شیعان علی اور میرے دل کی امید ہیں. بانو کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ بانو کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں. بانو کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ کیا بتاؤں بانو، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. سلیمان؟ ہاں، اسے دارالحکومت لے جا رہے ہیں. با خدا اپنی تمام تر ہمت و قوت کے ساتھ دارالحکومت پر حملہ کروں گی تاکہ سلیمان کو آزاد کرا سکوں. جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں. اگر کہیں ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ سلیمان کو آپ نے پناہ دی تھی تو وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرے گا. ابن زیاد کی تلوار آپ کی گردن پر بھی لٹک رہی وہ ہے. اتنی آسانی سے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. چلتا ہوں تاکہ سلیمان کی نجات کی تدبیر کروں. جلدی یہاں سے نکل جائیں. آدم، جی بانو. کیا اس وقت دارالحکومت پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کم سے کم 50 شمشیر زنوں کی ضرورت پڑے گی. کیا محبان علی کو خبر کر سکتے ہو؟ ممکن تو ہے، لیکن سلیمان نے کہا ہے اس کی خاطر کسی کا خون نہیں بہنا چاہیے. وہ اپنے پیروں پر چل کر قتل گاہ تک گیا ہے. سلیمان نے کہا تھا کوشش کریں کہ حسین کی نصرت کے لیے لوگوں کو جمع کریں اور جتنی جلد ممکن ہو مکہ کی جانب روانہ ہو جائیں. تم چھت پر جاؤ اور آگ جلا دو. میں بھی چند غلاموں اور خادماؤں کے ہمراہ دروازے کی طرف جاتی ہوں. وہاں تمہارا اور دوسروں کا انتظار کروں گی. جاؤ. اچھا بانو. شاید اس سے پہلے کہ مکہ پہنچوں یا اس سے بھی پہلے کہ بصرے کے دروازے سے باہر نکلوں تو ہو سکتا ہے کہ مارا جاؤں. اگر آپ کی آنکھیں میرے مولا حسین کی زیارت سے منور ہوں تو میرا سلام بھی ان تک پہنچا دیجیے گا.
बाबा बैठिए। तुम कैसी बीवी हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा शौहर इस वक्त कहाँ है? अगर सिर्फ एक शहर का हाकिम होता तब भी इसका फर्ज था दिन रात लोगों की खिदमत करे। अब तो कूफे की हुकूमत भी इसी के जिम्मे है। समझ नहीं आता तुम उसके महल में कैसे जिंदगी गुजार रही हो। हाकिमों की जिंदगी भी दरवेशों की जिंदगी से कम नहीं। इस फर्क के साथ के हाकिमों के हाथ खुले और दिल तंग, जबकि दरवेशों के हाथ तंग लेकिन दिल कुशादा होते हैं। मैं इन हाथों की खुशादगी पर ही काने हूँ। बाप बेटी में बड़े राज न्याज हो रहे हैं, क्या बात है? जब अमीर अपनी बीवी शको शुबा करे और बदगुमानी से काम ले और हर लम्हा आजमाने की फिक्र में हो तो बाप बेटी की गुफ्तगू तो नागवार ही गुजरेगी। अमीर बखूबी जानते हैं कि एतमाद ही मोहब्बत का सुतून है, इसे कायम ही रहना चाहिए। उबैदुल्लाह को तो तुम जानते ही हो, वो लिबास मोहब्बत में भी गैज़ो गज़ब के जेवर जेब तन करता है। लेकिन अमीर के गैज़ो गज़ब की जद में गैरों के साथ अपने भी आ जाते हैं। तुम लोग तो हमेशा से ही अमान में हो, वो बात कहो जो कहना चाहते हो। मैं आपके बाप की जगह हूँ, ये मुनासिब नहीं कि आप मुझे आजमाओ। मर्दों की आजमाइश औरत और दौलत से है और तुम इन दोनों में से किसी के अहल नहीं है। जासूस भेजते हो जो कहता है कि मैं सफीर हुसैन हूँ। फर्ज करो मैं यकीन कर लेता हूँ और उसके फरेब का शिकार हो जाता, तो तुम मुझे सूली पर चढ़ा देते, अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देते। हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जुल्म क्यों अपने सर लेते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरा जासूस है? मुझे बेवकूफ समझते हो या खुद को बहुत अक्लमंद? मेरा नहीं ख्याल कि शुजाअत तरीन आदमी भी इतनी दिलेरी से मुझसे, जो तुम्हारी बीवी का बाप है, कहे कि मैं सफीर हुसैन हूं, और ये कहे कि मैं बसरा के दीगर सरदारों के पास भी गया हूं और तुम सबसे आखिरी हो। बहुत खूब पीर मर्द, शाबाश। तुमने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। अच्छा, तो उस बेचारे को गुस्से से कहीं मार तो नहीं डाला? नहीं, वो जिंदा है और यहीं मौजूद है। उसे लेकर आओ। नजदीक लाओ। तुम्हें कहां देखा है? दरिया की तह में थे या आसमान की बुलंदी में? ये शख्स है कौन? तुम इसे मेरे पास लाए हो, फिर किस तरह इसे नहीं जानते? इसने तुम्हें नहीं बताया कि सफीर हुसैन हूं? जिसे तुम मेरे पास लाए हो उसे तो शहर के तमाम सिपाही और जासूस भी ना ढूंढ सके थे। क्या वाकई ये सफीर हुसैन इब्ने अली है? अमीर, मैंने सुना है कि सुलेमान इसी वक्त जाओ
और बसरे के तमाम सरदारों को गिरफ्तार करो और मेरे पास लाओ। एनफ इब्न कैस, नसर बिन उमर, यजीद इब्न मसूद, मालिक इब्न मुसम्मा, सबको। ये सब तो कबीलों के सरदार हैं, हजारों आदमी इनके जानिसार। मैं ऐसे में किस तरह उन्हें गिरफ्तार करूं? इन सबको साथ ले जाओ, महल के और जिंदान के निगहबानों सबको। मैं चाहता हूं कि इन सबको अपने अपने घरों से बाहर खींचते हुए लाओ। जाओ। जो हुकुम। अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहां देखा है। क्या बात है? वो हजारों दीनार तो खुद अमीर का नसीब हो गए हैं। बसरे की बानों के बाग वाले घर में देखा था। हाँ उस्मान मेरे भाई मेरे भाई, खुदा ने चाहा तो सफर कूफा से पहले सब काम अंजाम पा जाएंगे। तुम्हारा काम भी आसान हो गया। अब जाओ और बिनते अब्दुल कैस को गिरफ्तार करो। जाओ। मारिया? मारिया न कहो, बल्कि धारियों वाली नागन कहो कि जिसका घर शेरो फितना की आमाज का बन गया। जाओ। मारिया, तुम किसी की नहीं हो सकती अगर मेरी नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मौत तो फर्जंद आदम की गर्दन का जेवर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जवान दुख्तर की गर्दन पर गुलूबंद। तेज चलो। ये संभालो। जल्दी जल्दी करो, सामान उठाओ। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। क्या कर रहे हो इब्राहिम? मैं हूँ आदम। आदम, आज देखी तो वादागाह की तरफ ही जा रहा था, लेकिन आज रात क्यों? मैं बता दूंगा। अभी तो मुझे दूसरे दोस्तों को भी खबर करनी है। तुम दरवाजे की तरफ जाओ। अच्छा, मेरा सामान दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजे से निकलने के बाद कहाँ मिलना है? कबीले बनी कवीम के कुएं के पास मिलना है। जी बेहतर बानो। आपकी कमी हमेशा रहेगी बानो। आप हमें हमेशा याद आएंगी बानो। शायद खुदा की यही मर्जी थी। मुझे माफ कर दीजिएगा। इजाफी सामान ले जाने से परहेज करें। बानो, हम क्या करें? आप सब आजाद हैं। इन बत्तखों को बेचकर कोई काम काज शुरू कर सकते हैं। खुदा हाफिज। तुम भी बेहतर है कि जाओ। जी बेहतर बानो। आप लोग ज्यादा देर यहाँ ना रुकें, जल्दी चले जाएं। मरियम, मेरे लिए दुआ करना। ऊँटों पर सामान लाद दिया है?
आप लोग भी जल्दी चले जाएं। बानो हुजूर, चलिए कहीं देर ना हो जाए। जरा ठहरो, देखने तो ये आदमी इस बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रहा है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो ए बंदे खुदा, इस बेहाल और बेताब बच्चे के साथ? इस बच्चे की माँ मर गई है, भूख से बिलख रहा है। मुसाफिर हो? सोले, एक प्याला दूध लाओ। क्या सफर का इरादा है? हाँ, बेहतर है कि तुम भी अपने रिश्तेदारों के पास चले जाओ। इस बच्चे को किसी आया की देखभाल की जरूरत है। मैं अपनी बहन इस बच्चे की मां के पीछे बसरा आया था। जब तक इसे ढूंढ न लूं या उसकी खबर न पा लूं, यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि इसकी मां मर चुकी है। नहीं मालूम, शायद अभी न मरी हो, खुदा बेहतर जानता है। इस बच्चे का बाप वो कहाँ है? क्या बताऊं बानो, एक तन्हा मुसाफिर जो 3 साल से अपने बच्चे के इंतजार में था, और अब जबकि खुदा ने ये बच्चा उसे अता किया है तो वो अब तक इसे नहीं देख सका। कहीं ये बच्चा भानु, क्या आप इसे अपने पास रख सकती हैं? शायद इस तरह ये बच जाए। सुनो भाई, ये बच्चा कहीं सुलेमान का तो नहीं? हाँ, आप सलमा और सुलेमान को जानती हैं? मैं उन्हीं की तलाश में तो दर-बदर भटक रहा हूं। आपको खुदा का वास्ता मुझे बताइए कि वो कहां हैं? हमारे साथ चलो, तुम्हारा भी अब इस शहर में कोई काम नहीं रहा।
चलो चलो भाई। इधर आओ, दरवाजा तोड़ दो, तमाम जगह ढूंढो, सब लोग फैल जाओ, कमरों में, तहखानों में, हर जगह देखो, कहीं वो फरार ना हो जाए, तलाश करो। कोई भी घर में नहीं है। लगता है वो अभी अभी घर से गए हैं। लगता है चिड़िया पिंजरे से भाग गई। छत पर देखो। वहां रोशनी कैसी है? वहां आग जली हुई है। वापस आ जाओ। उबैदुल्ला अब वो नहीं मिल सकेगी सिवाय उसकी लाश के। चलो। खुदा तुमसे समझे, खुदा तुमसे समझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो उसे, खुदा ना उसे छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? पकड़ लो इसे। अब्बा खालिद होशियार। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो दूर हट जाओ। रुक जाओ तुम लोग, मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर जमीन पर किसी का खून बहाया जाए। पकड़ो इसको, बहुत नमाज पढ़ ली। उठा लो इसको। मुझसे क्या काम है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कि क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, छोड़ो। तुम अंदर जाओ। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूं अदम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अदम? सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
हमें आज ही रात बसरे से निकलना है। वो कल तय था। और कोई चारा नहीं, अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अच्छा, अगर दरवाजा खोल भी लिया तो फिर क्या करना होगा? हमें आज ही मक्का के लिए रवाना होना है, इमाम हुसैन के पास। क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, मगर मजबूर हूँ, मुझे बसरे ही में रहना होगा। तो मुझसे ज्यादा दीदार हुसैन के आरज़ूमंद थे। अब भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, लोगों की अमानतें मेरे पास हैं और मकरूज भी हूँ। अपनी अमानतें किसी दोस्त को दे दो और वो तुम्हारे कर्जे भी अदा कर दे। और दूसरे काम भी हैं। तुम जाओ, मैं अगर हो सका मक्के के रास्ते में तुमसे आ मिलूंगा और फिर साथ चलेंगे। अब्बा सैद, किससे बातें कर रहे हो? फकीर था, खुदा का शुक्र के चला गया। कुछ रोटी वगैरह दे देते। पूरा घर ही मांग रहा था, पूरा घर। आहिस्ता। अब क्या करें बानो? इन हालात में तो कुछ नहीं किया जा सकता। इंतजार करना पड़ेगा। अदम कब पहुंचेगा? उसने कहा था सब होने से पहले। पानो, पानो हुजूर, इधर आइए। क्या हुआ?